Hello, my dear NCLEX RN aspirants. So, this is NCLEX RN educator Sparsh Atwal. So, welcome to the Smart Nursing classes RN Made Easy. So, it is Sparsh Atwal's nursing concepts, and basically, we will be discussing about NCLEX RN case studies. So, let's begin our today's discussion. So the discussion of my lecture begins with a motivation bolus always. So let's see what's the motivation bolus for every one of us today. So the motivation bolus is merely knowing what you need to do is not enough for you to do it. Awareness is the start of the decision, not the end of it. सो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इफ़ यू नो that you need to crack NCLEX RN, that's not enough. If you know that you have to do the hard work, that is this just the awareness and it's the start of decision. When you keep on doing the hard work consistently, that will bring results. So that will bring the end results of your NCLEX RN results. Then this is our case study number one with Sparsh Atwal. So are you ready? Say yes. So case study number one, question number one. So nurse is caring for 65-year-old male. So important parameters I will be highlighting. तो नर्स इज केयरिंग फॉर 65-year-old मेल जिसको कैंसर है और जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन जाना है इन ओपीडी क्लिनिक. सो इसमें क्या है? इसमें जब हम देखते हैं तो नर्सेज नोट्स, तो इसमें आ जाता है कि 10:30 AM, ठीक है, 10:30 AM इज ओपीडी. तो 1 यूनिट पीआरबीसी, 1 यूनिट होल ब्लड इज ऑर्डर्ड. तो आप देखोगे बहुत रेयर होता है कि होल ब्लड किसी पर्सन को ऑर्डर किया जाए. होल ब्लड ऑर्डर करने का रीज़न एक हो सकता है कि पर्सन के ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड काउंट्स आर लो. सो यहाँ पे इफ़ आई राइट समथिंग फॉर यू, राइट, इफ आई राइट समथिंग फॉर यू, तो कैंसर पेशेंट्स में देर इज पॉसिबिलिटी पेशेंट के प्लेटलेट काउंट्स भी कम हो, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, उसका एचबी भी कम हो, दैट इज अनीमिया, और हो सकता है उस पेशेंट के डब्ल्यूबीसी काउंट भी कम हो. ठीक है, तो इस केस को हम ट्रिपल तीनों चीज़ों को बोल सकते हैं. तो दिस थ्री कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री इज कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. Thrombocytopenia. I just wanted this class to be introductory, but still, जो चीज़ें हैं we will discuss, right? So 1 unit PRBC was ordered to be given over 4 hours. So that's the maximum. That's the time frame during which a BT has to be administered. तो client feels fatigued. इसका क्या मतलब है? पर्सन को थकावट हो रही थी. नो मेजर कंप्लेन और नोन एलर्जीज वर देयर. कॉन्सेंट्स ले लिए गए थे, वेरीफाई कर लिए गए थे. सेंट्रल लाइन के पोर्ट को एक्सेस किया विद 19 गॉज हुबर नीडल. IV infusion of NS was started at 75 ml through central line. 10:30 पे उसने नोट्स डाले, 10:45 के नोट्स उसने डाले कि क्लाइंट की आईडी, ब्लड आईडी, ट्रांसफ्यूजन आईडी उसने वेरीफाई कर ली बेड साइड पे दूसरी आरएन के साथ. सो दैट्स व्हाट वन नीड्स. ट्रांसफ्यूजन ऑफ 1 यूनिट ए पॉजिटिव होल ब्लड स्टार्टेड. तो उसने ब्लड ग्रुप भी लिख दिया कौन सा ब्लड ग्रुप स्टार्ट हुआ है इन एक्चुअल. सो दैट इज व्हाट वी नीडेड, राइट? Client reports itching, so that was not needed at all. So this is abnormal stuff. So we will highlight this with red. It reports itching, facial flushing is known. तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है. And it's noted that there are localized rash on arms. So this is also a gadbad. Okay. So let's see what rest stuff is. There is no shortness of breath. That is okay. No back pain. So मतलब there is nothing major. There everything is normal. है ना? अभी तक जो है that's normal. That's not gone beyond the limit power. Okay. तो let me zoom in. Okay. तो vital signs उसने 10:45 पे when she started the blood transfusion, she added, and the vital signs she added at 11 a.m., that is 15 minutes after the onset of blood transfusion. So अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, let's compare. तो temperature was normal, 98.6 है तो 97.6 है. If it doesn't go beyond 95, it's okay, right? It's normal. यहाँ पे भी temperature is normal.
पल्स की बात करें, पल्स यहाँ पे भी नॉर्मल है, यहाँ पे इंक्रीज है बट विद इन नॉर्मल लिमिट्स है, बिकॉज नॉर्मल इज 60 to 100। एंड अगर यहाँ पे बात करें रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मली इज 12 to 20, तो दिस इज नॉर्मल। बट यहाँ पे मैं वो चीज़ को नॉर्मल नहीं बोलूँगा, यहाँ पे बोलूँगा इट इज इंक्रीज्ड। ठीक है। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर अगर कंपेयर करूँ तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर कम है, यहाँ पे सही आ गया, तो कंपैरिजन में हम यहाँ पे यही बोल सकते हैं दैट इज यहाँ पे ड्यूरिंग सेकेंड टाइम जब ब्लड चला गया था, दैट टाइम बीपी वाज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल, आई कैन से इट्स अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल। ठीक है, एज कंपैरिजन टू द प्रीवियस स्टेट। पल्स ऑक्सीमीटर 95% शो कर रहा है, और यहाँ पे पल्स ऑक्सीमीटर इज शोइंग 95%, देयर इज नो चेंज। पेशेंट वाज ऑन रूम एयर, यहाँ पे भी रूम एयर पे कोई ऑक्सीजन नहीं लगा। ठीक है। लैब इन्वेस्टिगेशंस की बात करें, लैब इन्वेस्टिगेशंस की बात करेंगे तो we come to conclude that there is decreased hematocrit and decreased hemoglobin. So decreased HNH are indications for PRBC। ठीक है। तो ब्लड टाइप कौन सा इस पेशेंट का? ए पॉजिटिव है, तो हमने ऊपर पढ़ा था कि पेशेंट को ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप चला गया। तो लेट मी टेल यू, अगर ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप चला गया है, दैट इज राइट ब्लड, राइट। ओके। तो इमीडिएट फॉलोअप किस चीज़ को चाहिए? एज वी हैव डिस्कस्ड अबव, तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर को अगर मैं दोबारा आपको लेके जाऊँ ब्लड प्रेशर पे, तो ब्लड प्रेशर पहले कम था, अब सही हो रहा है, इट्स इम्प्रूविंग। तो इसको इमीडिएट फॉलोअप चाहिए? आई डोंट नीड, इट्स गेटिंग राइट एक्चुअली। हार्ट रेट, हार्ट रेट कहाँ है? हार्ट रेट ये रहा, हार्ट रेट पल्स है ना, 96 थी पहले, अब 100 हो गया। इट्स विद इन नॉर्मल लिमिट्स, आई डोंट नीड टू रिक्वायर इमीडिएट फॉलोअप। टीचिंग पहले नहीं थी बट अब है, इट रिक्वायर्स फॉलोअप। पल्स ऑक्सीमेट्री नॉर्मल है, रेस्पिरेटरी रेट 20 था 22 हो गया, तो इट रिक्वायर्स फॉलोअप। स्किन का स्टेटस उस पर इरप्शंस आ रहे हैं, दैट रिक्वायर्स फॉलोअप। तो टेम्परेचर इज नॉट देयर, इट डजंट रिक्वायर एनी फॉलोअप। ओके, so let's proceed. So this is the way you answer the case study questions. You need detailed study, you need to be conscious, you need to have the holistic approach. So it's a bit different from the general questions that that are being asked. तो यहाँ पे क्या होता है देखो, तो यहाँ पे एक ही केस स्टडी में उन्होंने आपका इतना सारा कुछ पूछ लिया जो नो अदर एग्जाम कैन चेक। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, दे आर आस्किंग फॉर ईच क्लाइंट फाइंडिंग, क्लिक टू इंडिकेट अगर वो किसी और ब्लड रिएक्शन के टाइप को मिमिक कर रही है कि नहीं कर रही। चलो जी, हम यहाँ पे आते हैं। तो अक्यूट हीमोलिटिक रिएक्शन, अक्यूट हीमोलिटिक रिएक्शन कब होता है? सिंस आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट इन डिटेल हेयर बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अक्यूट हीमोलिटिक रिएक्शन कब होता है? जब रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूज हो जाए। ठीक है। तो रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूज हो जाए तो उसमें क्या है, उस केस में आपको बहुत मैनिफेस्टेशंस आएंगी। उसकी मेन मैनिफेस्टेशन इज बैक पेन, मेन मैनिफेस्टेशन इज व्हाट, it is decreased in blood pressure, so decrease in blood pressure, right। और इसमें क्या होगा, बीपी कम हो जाएगा, फीवर आएगा, चिल्स आएंगे, बैक पेन आएगी, डार्क यूरिन भी आएगा। ठीक है, देयर विल बी डार्क यूरिन, देयर विल बी डार्क यूरिन। तो इसमें मैं क्या बात कर सकता हूँ, यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आएंगे? फ्लशिंग होगी, हाइव्स नहीं आएंगे, इचिंग नहीं आएगी, रेस्पिरेटरी स्टेटस जो है उसमें प्लस माइनस है, इसलिए मैं इसको मार्क नहीं करूँगा। हार्ट रेट चेंजेस आर नॉट दैट सिग्निफिकेंट। ठीक है जी। वैसे बीपी फॉल कर रहा है तो हार्ट रेट बढ़ेगा। ठीक है। देन माइल्ड एलर्जिक रिएक्शंस, तो माइल्ड एलर्जिक रिएक्शंस क्यों होते हैं? इसमें होता है कि पेशेंट को जब थोड़ा बहुत एलर्जेंस, कोई किसी और पर्सन का ब्लड है तो उसमें ऑब्वियसली कोई एलर्जेंस होंगे, उस एलर्जेंस को हमारी बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, बॉडी थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर रही है, माइल्ड एलर्जिक रिएक्शंस। तो फ्लशिंग इट्स अ सिम्टम, हाइव्स आ जाते हैं उस पेशेंट को, इचिंग होती है, रेस्पिरेटरी स्टेटस में कोई चेंज नहीं आता, हार्ट रेट में कोई चेंज नहीं आता। तो यहाँ पे और क्या चीज़ आ सकती है? यहाँ पे और चीज़ इसमें होती है अर्टिकेरिया, अर्टिकेरिया आ जाता है उस पेशेंट को, उस पेशेंट का फीवर नहीं आता, फीवर इज नॉट देयर। अगर वैसे बात करूँ, फीवर नहीं होता, बीपी स्टेज नॉर्मल, बीपी नॉर्मल रहता है। ठीक है, और हाइव्स हमने पढ़ी लिया, हाइव्स हो जाती हैं। ठीक है। अगर तीसरी बात करूं मैं, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, तो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन को मैं बोल सकता हूँ इट्स
फादर ऑफ ऑल रिएक्शंस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। इसमें क्या होगा, इस केस में पेशेंट को फ्लशिंग होगी, हाइव्स भी आ सकते हैं, इचिंग हो सकती है, रेस्पिरेटरी रेट स्टेटस भी चेंज हो जाएगा, हार्ट रेट भी चेंज हो जाएगा। इसमें पर्सन का ब्लड प्रेशर जो है फॉल करेगा, यूरिन आउटपुट जो है वो भी फॉल कर सकती है। ठीक है, और पेशेंट कैन कोलैप्स, पेशेंट कैन डाई ऑफ इट, राइट। तो इस कंडीशन में अगर मैं बात कर रहा हूँ एनाफाइलेक्टिक टाइप, ठीक है, तो एनाफाइलेक्टिक में वीजस भी होंगे, रेस्पिरेटरी स्टेटस में चेंज होंगे, तो वीजस विल बी हर्ड, वीजस भी पॉजिटिव होंगे। तो इन दिस वी नीड टू इंटरवीन इमीडिएटली। सर्कुलेटरी ओवरलोड ये कब होता है, जब हमने बैक टू बैक कितने ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स दे दिए हों। इसमें फ्लशिंग नहीं होएगी, हाइव्स नहीं होंगे, इचिंग नहीं होएगी, रेस्पिरेटरी स्टेटस चेंज होगा बिकॉज देर आर क्रैकल्स इन द लंग्स, फ्लूइड अक्यूमुलेट हो गया, और हार्ट रेट चेंजेस में और मे नॉट बी देयर। ठीक है, ओके। तो क्रैकल्स इन द लंग, क्रैकल्स एट बेस ऑफ द लंग, क्रैकल्स इन लंग्स वुड बी अ नेसेसरी फाइंडिंग। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या पूछना चाह रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि कौन सा टाइप का ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन लग रहा है आपको अकॉर्डिंग टू द डेटा गिवन। तो अक्यूट हीमोलिटिक हो सकता है, दैट्स अ नो। लेट मी टेल यू द रीजन, बिकॉज राइट, बिकॉज राइट ब्लड इज बीइंग गिवन। उसने जब वहां पे मैच किया, ए पॉजिटिव था, बाद में भी ए पॉजिटिव दिया, बिकॉज राइट ब्लड हैज बीन गिवन, बिकॉज राइट ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुई है। ठीक है, राइट ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुई है, इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि गलत है। माइल्ड एलर्जिक, तो पहले मैं बाकी रूल आउट कर देता हूँ। एनाफाइलेक्टिक नहीं है, बिकॉज सिंस बीपी इज नॉर्मल, सिंस वीजेस आर नेगेटिव, तो मैं इस चीज़ को नहीं बोल सकता कि एनाफाइलेक्टिक बीटी रिएक्शन है। सर्कुलेटरी ओवरलोड, सिंस क्रैकल्स आर नेगेटिव, तो मैं इसको नहीं बोल सकता। एंड सिंस ओनली वन बीटी हैज बीन गिवन, ओनली वन बीटी वॉज ऑन गोइंग, तो सर्कुलेटरी ओवरलोड नहीं हो सकता है। तो हमारे पास क्या बचा, दैट्स अ माइल्ड एलर्जिक। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ व्हाट इज दिस, दिस इज अ माइल्ड एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, ओके, दैट्स हाउ ब्यूटीफुली यू सॉल्व अ केस स्टडी। तो केस स्टडी का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम क्या पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या होंगी। इतना कंफ्यूज कोई इंडियन टेस्ट भी नहीं करता जितना इनफ्लेक्स करता है। सो टेस्ट्स यू होलिस्टिकली। सो नर्सिंग में क्या पूछेगा, डिस्कार्ड ब्लड ट्यूबिंग, दैट्स नॉट नीडेड। अगर इस पेशेंट को सीवियर रिएक्शन भी हो जाता तो हम ब्लड ट्यूबिंग्स जो है उसको हम साथ में ब्लड बैंक भेज दें, सो दैट इट कुड हैव बीन टेस्टेड। तो यहाँ पे डिस्कार्ड नहीं करनी इन एनी केस। इंसर्ट इन ड्वेलिंग कैथेटर, क्यों भाई किसी पेशेंट को क्यों ऐसे फुलिस डाल देंगे। ब्लड कल्चर्स, कौन सा फीवर आ रहा है जो हम उसके कल्चर्स भेजेंगे, तो यहाँ पे एक्शन वुड बी टू स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन। तो मेडिकेशंस कौन सी, एसिटामिनोफेन, कौन सा फीवर आ रहा है, डाइफेनहाइड्रामिन देंगे बिकॉज इट इज एंटी हिस्टामिन ड्रग और एंटी एलर्जिक ड्रग। एपिनेफ्रिन नहीं देना, यहाँ पे कौन सा एनाफाइलेक्सिस हो गया। फिरोसिमाइड नहीं देंगे, फिरोसिमाइड हम देते हैं इन केसेस ऑफ सर्कुलेटरी ओवरलोड। तो यहाँ पे क्या नर्सिंग एक्शन होगा, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन, गिव डाइफेनहाइड्रामिन, and if patient gets okay, start the transfusion after 30 minutes, that too slowly. That's how you see a case study. Then question number 5 हम देखते हैं, see how slowly gradually कितने प्यार से हमने केस स्टडी सॉल्व की। तो यहाँ पे बोल रहे हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने देखा कि पेशेंट को माइल्ड एलर्जिक रिएक्शन है एंड ऑर्डर कर दिया डाइफेनहाइड्रामिन, जो इंडिया में एविल नाम से आता है। ठीक है, तो डाइफेनहाइड्रामिन बोल दिया। तो नर्स ने व्हाट शुड द नर्स टीच द क्लाइंट अबाउट ट्रीटमेंट प्लान। तो इन countries where NCLEX is applicable, they have the same rules and policies. So patient teaching is important. So the symptoms are signs of blood incompatibility causing red blood cell destruction. नहीं. So still they are testing you holistically. Blood incompatibility के कारण नहीं हुआ है जी. Diphenhydramine is antihistamine to help decrease the itching. Yes, she is teaching her right. मेन साइड इफेक्ट ऑफ एंटीहिस्टामिन इज एजिटेशन, एजिटेशन नहीं होती, उस पर्सन को नींद आती है।
इमीडिएटली रिपोर्ट एनी डिफिकल्टी ब्रीदिंग और बैक पेन। यस, उसको बोलेंगे अगर तुझे ऐसा कुछ हो रहा है, उसका क्या मतलब है, माइल्ड एलर्जिक रिएक्शन इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सीवियर एलर्जिक रिएक्शन। अगर सिम्टम्स इंप्रूव हो जाते हैं 30 मिनट्स में, ट्रांसफ्यूजन को स्लोली स्टार्ट कर सकते हैं। यस, प्री ट्रीटमेंट विद एंटीहिस्टामिन में बी नीडेड फॉर फर्दर ट्रांसफ्यूजन्स। यस, उसको जब जब बीटी लगेगा तब तब उसको डाइफेनहाइड्रामिन देना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ यू अप्रोच ए क्वेश्चन ऑफ केस स्टडी। यहाँ पे हम सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, नर्स ने रीअसेस किया आफ्टर ट्रीटमेंट प्लान। तो हम ऊपर से देखते हैं क्या रीअसेसमेंट की उस पेशेंट की। यहाँ पे देखो, 10:45 पे जब वो आया था, 11 o'clock जब उसको रिएक्शन हुआ, और उसके बाद का टाइम देखो क्या बोल रहा है वो। ट्रांस 10 बजे उसको लगाया, 10:05 पे है ना, 10:30 पे बीटी स्टार्ट किया, 10:45 पे उस 30 पे ऑर्डर हुआ, 45 पे स्टार्ट हुआ, 11 बजे उसको रिएक्शन हो गया। 11 बजे रिएक्शन हो गया, इचिंग हो गई है, लोकलाइज्ड रैशेस हो गए हैं, ठीक है, फेशियल फ्लशिंग हो गई है, ट्रांसफ्यूजन स्टॉप कर दी, लंग साउंड क्लियर थी, तो इसका मतलब एनाफिलेक्सिस तो हो नहीं सकता। हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई कर दिया, उसने एंटीस्टामिन बोला, दे दिया, फेशियल फ्लशिंग नहीं है, वाइटल स्टेन्स नॉर्मल है, ब्रेथ साउंड्स क्लियर हैं, विजिबल रैश नहीं है, प्रोराइटिस रिजॉल्व हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, इंप्रूव हुआ, डिट्योरेट हुआ, क्या अनचेंज हुआ? यहाँ पे इंप्रूव हुआ भाई, सारे साइन सिम्टम्स जो है रिवर्स हो गए। नर्स शुड नाउ रिक्वेस्ट टू, क्या रिक्वेस्ट करेगी, डिस्चार्ज करें क्लाइंट को? नहीं भाई। एडमिट द क्लाइंट? नहीं, क्योंकि बाकी बीटी बचा हुआ है तो उसको रिज्यूम करना है। ठीक है, रिज्यूम दैट। ओके, सी हमने कितने प्यार से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पे व्हाट आर द एक्शंस टू बी टेकन, है ना, इस चीज के लिए एक्शंस क्या चाहिए थे। बिगिन अ फ्लूइड बोलस, फ्लूइड क्यों दो, कौन सा बीपी फॉल कर रहा है, डायूरेटिक सर्कुलेटरी ओवरलोड में देते हैं, हिस्टामिन एंटीहिस्टामिन देना है, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन, आईसीयू में शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। पोटेंशियल कंडीशन क्या क्या हो सकती है, फ्लूइड ओवरलोड नहीं है, मैंने बताया, हीमोलिटिक रिएक्शन नहीं है, बिकॉज हीमोलिटिक होते तो बीपी फॉल कर जाता और बैक पेन होती। फ्लूइड ओवरलोड नहीं है बिकॉज ब्रीदिंग डिफिकल्टी नहीं है, क्रैकल्स नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा बीटी नहीं गए, माइल्ड एलर्जिक रिएक्शन भी नहीं है, माइल्ड एलर्जिक रिएक्शन ही है ना। फेब्राइल नॉन हीमोलिटिक, कोई फीवर नहीं आया तो फेब्राइल नहीं है, इसका पोटेंशियल कंडीशन इज 1। एंड पैरामीटर्स टू मॉनिटर, यूरिन को मॉनिटर नहीं करेंगे, यूरिन को हम हीमोलिटिक में मॉनिटर करते हैं। स्किन को मॉनिटर करेंगे, स्किन की प्रॉब्लम थी, ब्रेथ साउंड्स को मॉनिटर करेंगे क्योंकि पोटेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, बैक पेन नहीं करेंगे, टेम्परेचर को मॉनिटर करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। तो थैंक्स एंड स्टे ट्यून फॉर मोर केस स्टडीज एंड रिलेटेड एनक्लेक्स कॉन्सेप्ट्स।